Good evening all. Welcome to digital platform of Healthline Academy. So today there is a introduction of heart, general anatomy and physiology of heart. What is heart? How it function? Anatomy of heart, part of hearts, wall. Now we will discuss about the walls. Uh, Walls. There is layers of heart, how heart functions, how the blood flows. All we think today we will discuss in the class. So good evening all. Let's start the cardiovascular system, the heart. Anatomy. First of all, we will deal with the anatomy of the heart. So, heart is approximately the size of your fist. Fist is our मुट्ठी. Like this is our fist. हमारी मुट्ठी की साइज का हमारा हार्ट होता है. So it is a size of your fist. There is a location. It is located in the superior surface of the diaphragm. Like this is diaphragm. There is sternum, and in the back side there is vertebrae. So heart is located behind the sternum, above the diaphragm, and in front of means is anterior part of the vertebrae. So first of all, there is a superior surface of the diaphragm, left side of the midline. Like this is the midline, left side, like little bit it is tilt toward the right side, but it is mainly located on the left side. And there is a anterior to the vertebral column, posterior to the sternum. So we have already discussed that it is anterior to the vertebral column, posterior to the sternum, and superior to the diaphragm. So the heart is located in the, if someone asked exact location of heart, it is in the mediastinum. Mediastinum is the space between the two lungs. Okay. So next, there is a general anatomy. This is the mid-sternal line, like this one. Second rib, from starting from the heart is, the apex of heart is lies in the level of second rib. There is a sternum. There is a sternum, diaphragm, point of maximal intensity, right lung and heart. Okay. So it is located mainly in this part of the mediastinum. It is called as the mediastinum. Okay. So we will later discuss on about the superior vena cava, left lung, aorta and all these things. First of all, we are dealing with the anatomy. Then pericardium. Pericardium is the outermost covering of the heart. It is a double walled sac around the heart, composite of outermost. It consists of two layers, like visceral layer and parietal layer. Parietal layer is outermost layer. There is a superficial fibrous pericardium, and deep into there is a two serous pericardium. That is the parietal layer lying in the internal surface of the fibrous pericardium. Like this is the two layers of the heart, one, and this is the second. This one is parietal, which is attached to the other organ, and this is the visceral. Visceral is attached to the particular organ of the heart. Okay. Then second is the visceral layer or the epicardium. Visceral layer is also known as epicardium. Lines the surface of the heart. Means it is just stick to the surface of the heart. So it is called as visceral, and which is stick to the other organ, like other peripheral organs, it is known as the parietal layer. They are separated by the fluid filled in the pericardial cavity. There is a fluid which is filled in between the, like I will draw once again. This is the parietal, and this one is the visceral layer of heart. Okay. Then I will show you with another color. This is the pericardial fluid.
which is present in between the parietal and the visceral layer of the heart. It will act as a non-frictional substance. Like whenever there is two layers, it will, if the heart inflate and deflate, like if the heart is expand or contract or relax, then there is a rubbing between these two layer. क्या होता है कि जो दो लेयर्स होती है उनके बीच में आपस में रबिंग होती है. उस रबिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड रहता है वो उस रबिंग को प्रिवेंट करता है. ये जो फ्लूइड की जो कैपेसिटी रहती है वो 20 to 50 ml नॉर्मल कैपेसिटी रहती है. ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो भी एक पर्टिकुलर हार्ट की कंडीशन को कोज करता है, जो हम आगे की फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है कार्डियक टेम्पोनेट. सॉरी, कार्डियक टेम्पोनेट. ओके, ये हम अगली नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. बट आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर ये फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से तो क्या होगा, तो कौन सी कंडीशन को कोज करेगा. ओके, सो वी विल मूव नेक्स्ट. देयर इज अ फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के फंक्शंस देखेंगे. प्रोटेक्ट एंड एंकर द हार्ट. लाइक ये हार्ट को एक प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से, जो कि हार्ट को हार्म कर सकती है. प्रिवेंट ओवरफिलिंग ऑफ द हार्ट विद द ब्लड. लाइक क्या होता है कि जब सिस्टोल और डायस्टोल होता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स और एट्रियम में ब्लड फिल होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि हार्ट एक्सपांड होता है. हार्ट को एक्स्ट्रा एक्सपांड होने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक हार्ट फाइब्रस लेयर होती है जो कि एक ओवर एक्सपांड से प्रिवेंट करती है इसको. ठीक है. देन अलाउ फॉर द हार्ट टू वर्क इन द रिलेटिवली फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट. लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट रहना चाहिए. जब हार्ट एक्सपांड होता है, हार्ट रिलैक्स होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो दोनों लेयर है, विसरल और पैराइटल लेयर्स है, वो आपस में क्या होता है, रब होती है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि उस रबिंग को प्रिवेंट करता है एंड देखा कि हमने कि प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स से भी. सो ये देखें जैसे कि पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिकार्डियम, दिस वन इज, and this inner layer, this one is myocardium. Myocardium is a thick muscle layer. Myo is muscle. It is a thick muscle layer and there is innermost layer, it is known as, this one is endocardium. Innermost is endocardium. Okay, endom is innermost. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि फाइब्रस पेरिकार्डियम, इट इज ऑलरेडी मार्क्ड ओवर हियर. देयर इज अ पैराइटल लेयर एंड द सीरस लेयर. लाइक पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू टू, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर. ओके, सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड व्हाट इज पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर. पेरिकार्डियम के दो लेयर होती है. पेरिकार्डियम दो लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जो कि पैराइटल लेयर जो आउटरमोस्ट लेयर रहती है एंड विसरल लेयर जो इनर लेयर रहती है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन से स्टिक्ड रहती है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एपिकार्डियम इज अ विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. विसरल लेयर का ही दूसरा नाम है एपिकार्डियम. ओके, देयर इज अ मायोकार्डियम, कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट. लाइक जो मेन जो फंक्शंस रहता है तीनों लेयर्स में, जो सबसे मेन फंक्शन रहता है वो मायोकार्डियम का रहता है. लाइक इसमें मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें हेल्प करती है. हार्ट को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना, कितना रिलैक्स होना, हार्ट को पावर देती है कि लाइक जब सिस्टोल हो रहा है, जब ब्लड पंप आउट हो रहा है तो उसको कितने फोर्स से पंप आउट होना है. लाइक स्ट्रोक कितना, एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम बाहर जाएगा, ये सारा कौन मैनेज करता है. अगर मायोकार्डियम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी तो सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे. लाइक कार्डियक आउटपुट और ये सब मायोकार्डियम की वजह से मेंटेन रहता है. देन फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट इज क्रिस क्रॉसिंग द इंटरलेसिंग लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. लाइक ये क्रिस क्रॉस में ऐसे लेयर मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक लाइक इस टाइप से लेयर मेंटेन रहती है. सो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर बॉन्डिंग रहती है, क्रिस क्रॉसिंग रहता है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोकार्डियम, एंडोथेलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस. मायोकार्डियम सरफेस के अंदर एक और जो लेयर प्रेजेंट रहती है, जो मोस्ट इंटरनल लेयर रहती है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम.
नेक्स्ट है देयर इज अ वेसल्स रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट इंक्लूड सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। लाइक हम अगर हार्ट का एक रफ या ओनली ऑब्जेक्टिव डायग्राम देखेंगे, ओनली हम लाइन डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, लाइक ये जो आ रहा है, ठीक है, ये आकर के यहाँ पे ये आएगी सुपीरियर वेना केवा, ये यहाँ से आई इंफीरियर वेना केवा, ये है अपना सुपीरियर वेना केवा और ये है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, जो हार्ट के लेवल से जो नीचे का लोअर बॉडी से ब्लड ड्रेन करके राइट एट्रियम में पुट करने का काम करती है। एंड देन जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा क्या करती है कि अबोव दी हार्ट या अबोव द थोरेक्स से ऊपर का जो भी लेवल का जितना भी ब्लड है वो सारा ड्रेन करके राइट एट्रियम में पुट करती है। देन देयर इज अ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, देयर इज राइट एंड लेफ्ट। जब हम यहाँ पे देखेंगे आगे पूरा फ्लो सर्कुलेशन देखेंगे, तो जो पल्मोनरी वेन्स होती है जो यहाँ हार्ट से निकल करके जो लंग्स में जाती हैं, जो ब्लड फिल्टर करने के लिए ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जाकर के ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है, तो जब राइट एंड लेफ्ट लंग्स में जाती हैं तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। ओके, देयर इज वेसल कन्वेइंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इंक्लूड दी, हार्ट से जो अवे जो दूर ले जाती है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी ट्रंक। सो हम देखते हैं पल्मोनरी ट्रंक विच स्प्लिट्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं असेंडिंग एयोटा। असेंडिंग एयोटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एयोटा निकलता है। This is ascending, this one is ascending aorta, this was is arch of aorta, and this one is descending aorta. Okay, there is a aorta, there is in this arc it is divided it or further divided into brachiocephalic, this one is brachiocephalic, left coronary artery and subclavian artery, this one is brachiocephalic, this one is left coronary artery and this one is subclavian artery. Okay, so in next we will see the arteries. What is arteries? Arteries, there is right and left coronary. In atrioventricular group there is a marginal, circumflex and anterior artery, like left and right and left coronary artery. Coronary artery which supplies blood to the heart, not from the heart, supplies blood to the heart, मीन्स जब हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ब्लड की नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, तो कोरोनरी आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती है फंक्शनिंग करने के लिए। उसमें मेनली जो डिवाइडेड है वो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो मेनली डिवाइडेड होती हैं राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट फर्दर डिवाइड होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, ये आपको डिवीजन याद रखना है। देन वेन्स, स्मॉल कार्डियक वेन्स, एंटीरियर कार्डियक, ग्रेट कार्डियक वेन्स, ऑल वेन्स विच आर ड्रेनिंग ब्लड। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ एंटीरियर व्यू ऑफ हार्ट फ्रॉम एंटीरियरली, लाइक जब हम सामने से देखेंगे हार्ट को एंटीरियर व्यू मीन्स जब हम सामने से देखते हैं, पोस्टीरियर व्यू मीन्स हम जब बैक साइड से देखते हैं, सुपीरियर जब हम ऊपर से देखेंगे एंड इंफीरियर जब हम नीचे से देखेंगे। तो आपको ये व्यूज क्लियर होने चाहिए कि एंटीरियर बोला तो एंटीरियर का मतलब क्या होता है। एंटीरियर मींस जब हम किसी चीज को सामने से देख रहे हैं तो हम उसको एंटीरियरली देख रहे हैं, एंटीरियरली व्यू कर रहे हैं। तो जब हम हार्ट को सामने से देखेंगे तो उसमें हम क्या क्या देख पा रहे हैं, लाइक अभी हमने डिस्कस किया ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा देख रहे हैं जो ऊपर से ब्लड ड्रेन करके ला रही है। देयर इज अ राइट पल्मोनरी आर्टरी, दिस वन इज राइट पल्मोनरी आर्टरी। ascending aorta, this one is ascending, this one is ascending aorta, this is arch of aorta and this side is
descending aorta. Okay, there is a pulmonary trunk which is located over here. Right pulmonary veins, right atrium. This one is right atrium. This is right ventricle. Left atrium. This is left ventricle. Okay, there is an anterior cardiac vein. Right ventricle, marginal artery. This one is marginal artery which is arriving from the margin. This is RCA, right coronary artery. First of all, supplies to the subsinoatrial node. There is a small cardiac vein, and this one is inferior vena cava. This posteriorly we can see the inferior vena cava. Okay. Next, vessels returning blood to the heart include. जो हार्ट को रिटर्न करती है ब्लड, उसमें होती है सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो कि हार्ट को ब्लड ला करके देती हैं, सब जगह से ड्रेन करके ब्लड को हार्ट में डालती हैं. तो उसमें होती हैं जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में जो गया है डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, जो प्रोसेस होने के लिए, उसको क्या करती है कि ला करके वापस लेफ्ट एट्रियम में पुट करने का काम करती है. वो होती है अपनी पल्मोनरी वेन्स. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा जो कि अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड ड्रेन करके राइट एट्रियम में पुट करती है. वेसल्स कन्वेइंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर इंक्लूडिंग aorta. अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स फ्रॉम द हार्ट टू द होल बॉडी is aorta. This is the largest artery. Okay, and there is a right and left pulmonary arteries which conveying blood away from the heart. Okay, next is arteries. Right coronary artery. Okay, we already discussed. This is external. This is the posterior view of heart. Like from posteriorly, what we can see that this is the aorta. It is clearly these three branches. This is aorta, superior vena cava, which we can see. Okay, there is a pulmonary veins, auricle of the left atrium. This is auricle of the left atrium. This is left atrium. This part is all. Great cardiac vein, posterior view of left ventricle. This is left ventricle का posterior view, and this is apex of heart. This one is apex. Apex is like narrowing part of the heart. जो हार्ट का apex होता है वो हमको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलता है, एंड जो हार्ट का बेस होता है वो हमको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे मिलता है, और सेकंड जो रिब होती है उसके मार्जिन पे हमको मिलता है. सो आपको जब भी बोला जाए कि एपेकल पल्स लेनी है तो हम कहाँ पे चेक करते हैं एपेकल पल्स? एपेकल पल्स हमको एपेक्स ऑफ द हार्ट पे मिलती है. लाइक तब भी हमको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पल्स को लेना है, फोर्थ टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. ओके, दिस इज द फ्रंटल सेक्शन and this is the atria of heart. Atria are the receiving chambers of the heart. Like heart में two atrias present होते हैं, two ventricles present होते हैं. जो atrium होते हैं, जो heart के atrias होते हैं, दो atria होते हैं, right atrium and left atrium. ये क्या करते हैं? ये receiving chambers हैं. ये हमेशा ब्लड को रिसीव करने का काम करेंगे, चाहे से होल बॉडी से अगर ड्रेन होकर ब्लड आ रहा है तो राइट एट्रियम में आएगा, और अगर लंग से अगर ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा. तो ये जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ऑलवेज क्या करते हैं कि ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं. देन हम देखते हैं कि देयर इज ए पिनेकेट मसल्स मार्क्ड आर्टेरियल वॉल्स. ओके, ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड द फ्रॉम द कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस वो होता है जो हार्ट को सप्लाई करती है, जो कि एओर्टा के असेंडिंग पार्ट में प्रेजेंट होती है. वहां से भी क्या होता है, ब्लड ड्रेन होकर के हार्ट में आता है. देन ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है. देन देयर इज अ वेंट्रिकल्स आर द डिस्चार्जिंग चैम्बर्स. डिस्चार्जिंग चैम्बर्स मींस जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहां से जो ब्लड होता है वो बाहर जाता है. लाइक अगर हम राइट वेंट्रिकल से देखेंगे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से देखेंगे तो होल बॉडी में जो सप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो काम करती है वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो वेंट्रिकल्स को हमने क्या बोला? डिस्चार्जिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. देयर इज अ पेपिलरी मसल्स एंड द टेबिकुलरी किडनी मसल्स मार्क्ड वेंट्रिकुलर वॉल्स. यहाँ पे कुछ पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, कुछ टेबिकुलरी किडनी प्रेजेंट होती हैं, वो वहाँ पे वेंट्रिकल्स में रहती हैं. ठीक है, तो देयर इज अ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी व्हिच ऑलरेडी डिस्कस्ड in the pulmonary trunk, and left ventricle pumps the blood into the aorta. aorta में ब्लड जाने के बाद में होल बॉडी में सर्कुलेट होता है. ओके,
there is a thickness of myocardium varies according to the function of the chamber. Like आपको एक मैं बेसिक सा या एक कुछ अच्छा फंडा बताऊं, तो जो राइट वेंट्रिकल होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो 1:3 में होती है, लाइक 1:3 में प्रेजेंट होती है। अगर जो राइट वेंट्रिकल है, फॉर एग्जांपल अगर राइट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है, उसकी जो वॉल्स की थिकनेस है, अगर वो 10 mm है या 100 mm है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस होगी वो 300 mm होगी। तो ये ऑलवेज 1:3 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको ज़्यादा वर्कलोड उस पर ज़्यादा रहता है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, उसके ऊपर कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने का प्रेशर रहता है, उसको स्टॉप वॉल्यूम को मेंटेन करने का प्रेशर रहता है, उसको इतना फोर्स से पंप आउट करना पड़ता है ब्लड की होल बॉडी में सप्लाई हो पाए। सो उसकी जो मायोकार्डियम लेयर है वो थिक होती है कंपेयर टू दी राइट वेंट्रिकल की, जो कि 1:3 के रेशो में थिक रहती है, ठीक है। The atria are the thin walled, deliver blood in ओके। द एट्रिया आर दी थिन वॉल्ड, एट्रिया थिन वॉल्ड होती है बिकॉज एट्रिया पे इतना प्रेशर नहीं रहता है और एट्रियम का जो ब्लड होता है वो सीधा वेंट्रिकल में डिलीवर होता है, इसलिए एट्रियाज आर दी थिन वॉल्ड, डिलीवर ब्लड इनटू द एडजेसेंट वेसल वेंट्रिकल, सॉरी ventricle are the walled much thicker and stronger. Right ventricle supplies blood to the lungs, little flow resistance. Left ventricle wall is the thickest, okay, mark this thickest word, to supply the systemic circulation, okay. Then this is the right ventricle, intersepticular ventum, this is the wall of right ventricle and this is the wall of left ventricle. So you can see this is the thickness, this is the thickness of right ventricle and this is the thickness of left ventricle, okay. तो ये जो रहता है रेशो वो रहता है 1:3 के उसमें। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये पॉइंट आ गया तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, इट इज ए कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, जो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता है, वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाएगा तो जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड DO2 ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है। ये एक टाइप की कंडीशन है, ये कंडीशन हम पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे और लेटर ऑन आपसे डिस्कस करेंगे। देन नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, दिस इज द एओर्टा, ओके, सॉरी this one is the aorta, okay, this is the right atrium, right ventricle, this is the left atrium, left ventricle, okay. The pathway of the blood through the heart and the lungs, from right atrium there is a tricuspid valve, मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ उसके अंदर। Okay, this is the right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Then हम फ्लो ऑफ ब्लड देखेंगे, लाइक फ्रॉम सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो गया। देन यहाँ से क्या होता है, ब्लड ट्रैवल करता है यहाँ पे, तो ये जो वॉल्व पड़ता है इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, बिकॉज देयर इज द 3 कस्प, 3 लीफलेट्स विच आर क्लोजेबल एंड जो इनका जो वॉल्व्स रहता है, इनका जो यूनिक फंक्शन रहता है वो करते हैं प्रिवेंट बैक फ्लो, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स रहते हैं, जो कि एक बार ब्लड अगर यहाँ पे आ गया तो वो वापस रिटर्न नहीं जा सकता, ठीक है। जो ब्लड यहाँ पे आ गया तो यहाँ से जाता है फिर लंग्स में, लंग्स से फिर होकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, वहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व, ये बोलेंगे हम बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ये जो वॉल्स होते हैं ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं, मींस एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच के वॉल्स होते हैं। और हम कुछ और आगे जो वॉल्व्स पढ़ेंगे
वो होते हैं सेमिल्यूनार वॉल्स, जो कि एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दिस इज द जनरल सर्कुलेशन पाथवे ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट एंड द लंग्स। कैसे कैसे कहाँ से ब्लड फ्लो करता है, लाइक यहाँ से ब्लड आया, फ्लो करके नीचे गया, देन यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होने के बाद में जो होता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ओके, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई होता है। देन अगेन दिस इज द इंफीरियर वेना केवा एंड विच ड्रेन ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। देयर इज अ कोरोनरी सर्कुलेशन is a functional blood supply to the heart muscles itself. ओके, ये क्या होता है कि कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, ये क्या करती हैं, जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को खुद को सप्लाई करने के लिए रहती हैं। कोलेटरल रूट्स एंश्योर द ब्लड डिलीवरी टू द हार्ट इवन इफ द मेजर वेसल्स आर ओक्लूटेड। कोलेटरल मीन्स एक ही जगह को सप्लाई करने के लिए टू थ्री वेज रहते हैं वहां पे। लाइक अगर एक वे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो हम दूसरे वे से भी उसको सप्लाई कर सकते हैं, कि कोई भी अगर हार्ट की कोई मेजर अगर वेसल भी ब्लॉक हो गई है तो भी उस पर्टिकुलर साइट को या उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई होता रहेगा, इसलिए हम इसको कोलेटरल सर्कुलेशन बोलते हैं। कोलेटरल का मीन्स क्या होता है कि एक ही जगह पे पहुंचने के लिए, लाइक आपको एक ही डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको 2-3 अलग अलग वेज रहते हैं, तो वो होता है कोलेटरल। ओके, दिस इज द आर्टरियल सप्लाई टू द हार्ट। ओके, देयर इज अ सुपीरियर वेना केवा, anterior cardiac veins, great cardiac veins which we already discussed, sorry, coronary sinus, coronary sinus यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, कोरोनरी साइनस क्या होता है कि जो एसेंडिंग एओर्टा होता है वहां से जो कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, तो उस जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ओके, now we will discuss about the heart valves. So heart valves is ensure the unidirectional blood flow or prevent the backflow. Okay, unidirectional है, not bidirectional, it is unidirectional means अगर एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है तो एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, ना कि वेंट्रिकल से एट्रियम में जाएगा। क्या होता है, जो लिफलेट्स होते हैं वो जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो ऐसे ओपन होते हैं, देन अगेन जैसे ही ब्लड का प्रेशर खत्म हुआ, बैक फ्लो होने लगा, तो वापस से क्लोज हो जाते हैं। सो ये ऊपर नहीं खुलते, ओनली डाउन साइड में ओपन होते हैं। There is atrioventricular valve. Valves present lies between the atria and the ventricles. Like जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व्स रहते हैं उसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो एवी वॉल्व्स हैं वो हैं, दो हैं, एक तो हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड और एक हम बोलते हैं बाइकस्पिड। ओके, बाइकस्पिड का ये दूसरा नाम है मिट्रल, इसको भी हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ओके, एवी वॉल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो इनटू द एट्रिया व्हेन देयर इज अ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड होता है वो वॉल्व्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाता है। वेंट्रिकल्स में जाने के बाद में जब उस एट्रियम रिलैक्स होने लगता है तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो वॉल्व्स होती हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं और ब्लड वापस से एट्रियम में नहीं जाने देती हैं। ओके, देयर इज अ कोडेड टेंडेनाई एंकर एवी वॉल्व्स लाइक द पेपिलरी मसल्स। कोडा टेंडेनाई क्या होता है, लाइक हमारा पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये इस टाइप से वॉल्व हैं, तो यहाँ पे एक एंकर फिक्स है कि ये जो वॉल्व हैं ये ऐसे ही ओपन होंगे, लाइक ये वापस से बैक फ्लो उल्टा नहीं जा सकते। यहाँ पे एक लाइक अगर हम देखते हैं कि कोई भी चीज को अगर दूर नहीं जाने देना तो हम एक रस्सी बांध के रखते हैं, ये एक टाइप की रस्सी कोड है। कोड क्या करती है कि एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन तक ही उसको लिमिट करती है, उसके बाद में उसको जाने नहीं देती। तो लाइक ये जो वॉल्स हैं वो ऐसे जा सकते हैं, नीचे डाउन फ्लो में ओपन हो सकते हैं, बट बैक फ्लो नहीं कर देते, प्रिवेंट करती है, वो होती है कोडा टेंडेनाई। ओके, देयर इज अ सेमिल्यूनार वॉल्व। सेमिल्यूनार वॉल्व दो हैं, सेमिल्यूनार वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स के बाहर जो भी आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को बाहर अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। There is a aortic semilunar valve lies between the left ventricle and the aorta
and there is a pulmonary semilunar valve. Valve lies between the right ventricle and the pulmonary trunk. Pulmonary trunk और right ventricle के बीच में जो valve present रहता है उसको हम pulmonary semilunar valve बोलते हैं, और aorta एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो valve present रहता है उसको हम बोलते हैं aortic semilunar valve. Okay, like this is the tricuspid. Sorry. Like this one is the tricuspid. Like this is one cusp, this is two, this is three. This is the tricuspid valve. There is a bicuspid. This one and this two. This is two is bicuspid valve. There is aortic. This one is aortic, and this is the pulmonary semilunar valve. Okay, this is the anterior view of valves. Next we will see. This is the coda tendini, like rope like structure, और हम रस्सी like structure बोल सकते हैं. ये coda tendinase है. Okay, ये क्या करती हैं कि जो वॉल्स रहती है उसको हाइपर एक्सटेंड होने से प्रिवेंट करती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व फंक्शन. ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट fills atria, putting the pressure against the atrioventricular valve. Atrioventricular valve forced open. Okay, as the ventricle fills, atrioventricular valve flaps hang lymphi and into the ventricles. Atria contract, forcing the additional blood into the ventricles. क्या होता है कि इसमें जब हम आगे कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल में कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस होता है, कब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब अगेन एट्रियल सिस्टोल होता है, कब वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे. ओके, okay, this is a cardiac muscles. It is a striated, short, fat, branched and interconnected. ये एक striated muscles होती है, एक involuntary muscles होती है from by the birth to till death. ये जो walls, ये जो होती हैं walls और ये जो muscles होती हैं, ये involuntarily functions continue करती रहती हैं. Okay, ये striated होती हैं, short होती हैं, fat होते हैं, इसके अंदर fat present रहता है, myocardium रहता है जो thick layer होती है. There is a connective tissue, endomysium, act as both tendon and insertion. यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, टेंडन और इंसर्शन जैसे एक्ट करता है. टेंडन इज लाइक टेंडनस स्ट्रक्चर. इट इज अ इंटरकैलेटेड डिस्क एंकर कार्डियक सेल्स टुगेदर एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ द आयंस. यहाँ पे एक इंटरकैलेटेड स्ट्रक्चर रहता है जो कि आयंस के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है. हार्ट मसल्स behave as a functional syncytium. हार्ट मसल्स क्या करती है, सॉरी, हार्ट मसल्स क्या करती है, एक फंक्शनल सिंसाइटियम जैसे एक्ट करती हैं. दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मसल्स. सो हम इसको हम फिजियोलॉजी पार्ट में देखेंगे डिटेल में. सो आज हम हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे. फिजियोलॉजी पार्ट एंड कार्डियक साइकिल, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.